Hello. Hi guys, how you been? I hope all you guys are safe, healthy and have been great. We'll wait for a while before joining Champion. So hang on with me. By the way, the song in the background is from Champagne's upcoming movie. It's called There She Goes. The movie name is Broken Wings. Hello, Anim. I'll pause him. Hi Rico, it's your song in the background. I hope you can hear it. Okay, we'll wait. Just hang on. Hi. I'll just. So our today's guest is Mr. Champagne Kimsa. He is a filmmaker. He's an actor. He's songwriter. I don't know what he can do. We'll soon add him and just let me see if he's there already. If you have seen Sadistan on Hotstar recently, he played Zigme in the movie. Other than that, he has many short movies. Lhasa Blues is one of my favorite, and many documentaries that you can find on the YouTube. I'll be sharing those links in my story after this. Just let me see if we can add him. Okay, I can see him. Okay, hang in there. I am just adding him. Okay, I can't see him yet. Okay, let's wait for him to join. He'll be here soon. Meanwhile, you can share the live link with your friends so that they can join. We'll be just adding him soon.
Okay, here he has joined him. Let me add him. Uh, Hi Shenpin, can you send me the request so that I can add you? I'm not able to add you. I've already. Hello. Hello, 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 hello. Hi. How are you? I'm very well. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. फिर? So let me first introduce you to the people. Uh, Here comes Mr. Champagne. He is Indian filmmaker. He is actor, songwriter, musician. ये सब की जरूरत नहीं है यार, I'm जरूरत just नहीं, जरूरत नहीं. wondering. I'm just wondering. Is there anything in the filmmaking process that you don't do? प्रोफेशनली मैं एडिट नहीं करता हूँ. Okay. म्यूजिक करता हूँ, सिनेमेटोग्राफी भी करता हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन डायरेक्शन, राइटिंग, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम भी किया मैंने. बस प्रोफेशनली एडिटिंग नहीं करता. उतना उतना धैर्य नहीं है मुझ में. Oh, हिंदी में बात करते हैं हम लोग. हाँ, हिंदी में बात करते हैं. yeah, sure. बिल्कुल. So, चलो. uh, I mean, आप यूएस में शिफ्ट हो गया. You still in India? Where are you right now? मैं अपने घर में हूँ, दार्जिलिंग में हूँ अभी. Okay, you are back in Darjeeling. Good to have you. Uh, so first thing तो first, like I have been like waiting. I don't know. Everybody who knows you will has been waiting for Broken Wings. So tell us about it, when it is coming, where it will be coming, how we'll be able to watch it. ब्रोकन विंग्स मेरे हिसाब से अभी उतना पोस्ट तो मैं नहीं बता सकता. पेंडेमिक के ऊपर बहुत कुछ है. Right. सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैं सोच रहा था ये दिवाली के आसपास रिलीज करने का, स्पेशली Okay. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट. Okay. So it will be a theater release. It will come on OTT, YouTube. पहले How? पहले पहले थिएट्रिकल. Okay. Great. सो स्पेशली यहाँ पे सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे पहले थिएटर, फिर उसके बाद में सितंबर में फेस्टिवल्स में भी जा रहा है, यूएस, कनाडा में, और बाद में तो देखते हैं. अभी उतना कुछ ज्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि एवरीथिंग इज सो अनप्रेडिक्टेबल अभी, राइट? कुछ Okay. तो जिन लोगों को नहीं पता है, लेट मी फिल इन. ब्रोकन विंग्स इज द फर्स्ट एवर दार्जिलिंग बेस्ड मूवी. अभी लास्ट वीक songs has released. There are 3 songs, and please let me know that which one you like the best. I like all 3 of them. थैंक यू. Yeah, which is your favorite song? अरे यार, मेरा फेवरेट आप अगर तो आप मुझे पूछो कि इन तीनों बच्चों में से आपका सबसे अच्छा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है भाई. पता नहीं, तीनों का अलग अलग जज्बात जुड़ा हुआ है मेरे साथ. लेकिन लोगों को, मुझे लगता है कि तुम साथ हो. सॉरी, मुझे लगता है कि लोगों को तुम साथ हो पसंद ज्यादा. और देयर शी गोज मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मैंने 6-7 साल पहले लिखा था. तो ओके. ये बहुत मुश्किल सवाल है. लेकिन अगर सच बोलूं तो मुझे ज्यादा, मैं खुद का गाना, खुद का
मुझे ये ब्रोकन विंग्स भी मुझे पर्सनली देखना ही नहीं है अभी। My personal favorite is There She Goes. Actually, I wrote a message to Rico also that it was his birthday, I think, few days back. That this यस, I have been listening this on loop. वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमें अच्छा लगता है, देखिए एक कलाकार होने के नाते अगर कोई हमारा काम पसंद करे, Yes. हमारे काम से अगर किसी को सुकून मिले तो उस उससे बड़ी बात। सो बिल्कुल। या बताइए। So आप I mean tell us about your journey. आपने start कहाँ से किया? Now here you are from the beginning, like अरे यार, मेरा जर्नी कौन जानना चाहता है यार मेरा जर्नी के बारे में। everybody. Uh, Actually, the thing is, if you are based in Delhi or Bombay, with your talent, everybody would have known you already. You have been like prime face on TV, and but the thing is, Northeast is still not that much connected. Like it is still, I don't know why. So इसीलिए मैं चाहता हूँ लोग जाने. I mean, the kind of talent you have. So I just want to know that your journey. मेरा जर्नी क्या बताऊं यार आपको, बहुत लंबा रहा है। अम, और जैसा होना चाहिए, बहुत सारे मुसीबत के से गुजरा हूं, और बहुत सारे स्ट्रगल बहुत देख, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता हूँ। हुआ अच्छा ही हुआ, जर्नी बहुत लंबा रहा है, लेकिन और मैं अपने आप को एक कलाकार मानता हूँ, एन आर्टिस्ट। आई एम नॉट एन एंटरटेनर। मैं मनोरंजन के नहीं करता हूँ। मैं एक कलाकार होने के नाते मुझे कुछ कहना है, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, आसपास अड़ोस पड़ोस के बारे में। तो बस इसीलिए मैं ये करता हूँ। लेकिन मुझे एंटरटेन करके फेमस बनना, ये लाइक्स ज्यादा आना, फॉलोअर कितना हो, ये है Yes. वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सो आई एम एन आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट का जर्नी जैसा होना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट भावनाओं के कारीगर होते हैं, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ इमोशंस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेकिन अगर कन्वेंशनल लेंस से देखा जाए तो बहुत सारे मुश्किलों से गुजरा हुआ हूँ। करीब 26-27 साल तो मेरा स्ट्रगल ही रहा है। और मैं आप लोग अब ऑब्वियसली हिंदुस्तान में आप लोगों को सबको भागवत गीता के बारे में पता है, महाभारत के बारे में पता है ना। तो मैं एकलव्य का बहुत बड़ा भक्त हूँ। Okay. का So तो मैं द्रोणाचार्य कौन है? I would be interested. जिंदगी, मेरी जो जिंदगी Okay. है, और जिंदगी मेरा सबसे बड़ा गुरु रहा है। बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ। एंड मुझे अर्जुन से मैं कभी वो अर्जुन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, कर्ण के साथ या कृष्ण के साथ भी। मैं एकलव्य के साथ बहुत कनेक्ट करता हूँ आज तक, और मैं हमेशा मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं भी जिस तरीके से एकलव्य सोचता था ना, मुझे भी वैसा ही सोचना है। जो काम मुमकिन लगे सबको, वो मुझे करना है। सॉरी, नामुमकिन लगे जो, तो मुझे वो करके दिखाना। तो क्या बताऊं मैं आपको। अब मेरा जर्नी, आप ऑडियंस लोग, आप पूछिए मुझे सवाल, मैं बताता हूँ। लेकिन पता नहीं यार, क्या उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन सबकी जिंदगी में होता है, एंड मतलब पहला माइलस्टोन, फर्स्ट थिंग इन फिल्म मेकिंग, पहली चीज जो आपने की, लाइक हाउ डिड अभी यू गेट इनटू? तक कुछ उखाड़ा रही भाई साहब, मैंने मेरा बाकी अभी। No, that's completely not true. I'm not going to agree with that. Uh, it, पता नहीं I, अब माइलस्टोन क्या बोलूं। मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ा okay. माइलस्टोन। जिस दिन जिस दिन मैंने जरूरत की अपने दिल का सुनना, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा है मेरा।
Okay. सुना आपने? The day I Yes. the day I left my heart, you know, that has been the big milestone because uh, you know, बहुत कम लोग होते हैं जो 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 अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, you know. Right. Yes. और उसके उसके साथ बहुत सारे त्याग भी होता है, बहुत सारे कठिनाई से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन जिस दिन मैंने कॉर्पोरेट काम छोड़ दिया, एक कन्वेंशनली रिस्पेक्टेबल काम छोड़ दिया, और जिस दिन मैं बहुत ही अपने आप पे भरोसा करने लगा, मैं वही मेरा सबसे बड़ा माइलस्टोन है। बाकी तो काम के हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने अभी कुछ खास काम किया है। हाँ, मैं करता हूँ, मैंने फिल्म बनाए, फीचर फिल्म बनाई, एक फीचर फिल्म में एक्ट किया, मेरा दूसरा फीचर फिल्म बन रहा है, म्यूजिक किया मैं, किया है, हिंदी में गाना लिखा है, कविताएं भी Yes. लिखता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी कुछ उखाड़ा है, तो खुद के बारे में अभी बात करना मुझे पता नहीं, अजीब लगता है। Surely, I think this is the beginning. You are going to go further up from here. Uh, so, so हाँ how जी। did this happen? Shadistan, Bollywood. How did this happen? राजस्थान, मैं मुंबई में था, ब्रोकन विंग्स बनाने का वो Okay. क्या Process. कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में था। Yeah. और चौधरी जो जो क्या कहते हैं, Correct. शादिस्तान डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला, अप्रोच किया कि ऐसा है, और ये रोल के आप अच्छे होंगे। एंड मैंने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे लिए वो रोल ठीक था, और वो रोल लिखा गया था किसी और के लिए, पता नहीं Okay. लेकिन क्या। और उनको और फिर प्रोड्यूसर को भी मेरा पर्सनल अच्छा लगा, और लगा कि ये किरदार मैं कर पाऊंगा। मैं तो बहुत ही बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने की कोशिश। लेकिन I want to say that Raj Singh Chaudhary, as a director, he trusted me a lot, और उन्होंने पूरी तरह से छूट दिया हुआ था क्रिएटिव। सो मैंने कैरेक्टर का नाम असल में डैनियल था। सो मैंने डैनियल Okay. से जिग्नी बना दिया। Jig. इस तरह दिखता नहीं हूँ, तो मुझे डैनियल बनना भी नहीं था, और फिर जिग्मी बना दिया। फिर मेरा जितना भी डायलॉग्स थे वो सब मैंने इम्प्रोवाइज किया, लेकिन बहुत छूट किया था डायरेक्टर ने। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ ठोस, कुछ खास काम किया है। वो बहुत बहुत साधारण सा सिंपल, ये शायद डायरेक्टर को जाता है, मुझे नहीं। Actually, you made it so personal कि ऐसा लगा जैसे you are playing yourself. It was that natural. Jigme was हाँ, people who know me very well, they know that थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा गंभीर okay. मिजाज का इंसान हूँ। मैं उतना फनी नहीं हूँ। मुझे कॉमेडी वॉमेडी उतना आता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरा मेरा काम थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ का था। और हाँ, मतलब इट वाज फन, बहुत ही कम समय में और बहुत कम बजट में काम किया था। थैंक यू। तो तो लेकिन ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, मुझे नहीं। Definitely. So, what और from here? पूछिए। आगे और यहाँ पे people are asking सॉरी, who गो are your अहेड। favorite from Bollywood? Ashok is asking who are your favorite from Bollywood? मतलब फेवरेट क्या, फेवरेट डायरेक्टर या एक्टर? Both. I would be interested in director, but actor also. फेवरेट डायरेक्टर
फेवरेट तो बहुत मुश्किल है यार बताना। फेवरेट ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे व्हाट्स हिज नेम, जिन्होंने अंधाधुन बनाया उनका नाम क्या है? I don't know, I forgot. अंधाधुन जिन्होंने बनाया वो Yeah, yeah, yeah. राघवन समथिंग, Rag- श्रीराम yes, Sriram Raghavan. Sriram Raghavan is a really good director. अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, और साउथ में मणिरत्नम जी और Okay. दिवाकर बैनर्जी, ये लोग these guys are doing interesting work. और पहले के जमाने में तो ऑब्वियसली सत्यजीत रे एंड बिमल रॉय एंड सत्यजीत रे इनक्रेडिबल एक्टर्स में मुझे लेट अमरीश पुरी जी बहुत, अभी Wonderful. Yes. नाम बहुत, और ओम पुरी जी, नासिरुद्दीन शाह, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, these guys are really great actors मुझे लगता है। Right. लेकिन मैं अपनी निजी निजी जिंदगी में मैं उतना हिंदी फिल्म नहीं देखता हूं। मैं, मुझे पता है हिंदी फिल्मों के बारे में, लेकिन मैं क्या कहते हैं, हाँ इरफान खान, सॉरी, थैंक यू, इरफान खान आल्सो, ब्लेस हिज सोल, बट पर्सनली जो इंस्टिंक्ट है वो आई वॉच नॉन बॉलीवुड। कौन? Somebody from Hollywood? हॉलीवुड में तो I think my all-time favorite director is Martin Scorsese. Favorite actors are Marlon Brando, same, Daniel Day-Lewis, Yeah. Al Pacino, Christopher Walken, अभी ये Austrian actor Christoph Waltz, phenomenal actor. Christopher Nolan as a director, Yeah. Ridley Scott. There's so many, man. कितने सारे, Yeah. I've like seen your Lhasa Blue. You want to make a gangster, full-fledged gangster movies after Broken Wing. हाँ, अभी वही बना रहा हूँ मैं next. Okay. So that is based in Northeast Tibet. हाँ हाँ, आपका नाम पता है? मैं sorry, I didn't get your name. आपका नाम क्या था? Rajesh. Rajesh. Where are you from, Rajesh? I am basically from Haryana. I lives in Delhi. हाँ. So last time जब हमारी बात हुई, I was actually in Northeast. अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं जानबूझ के हिंदी में बात कर रहा हूँ और आप मुझसे जानबूझ के पता नहीं इंग्लिश में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपका हिंदी एक्सेंट, हाँ जी, आपका हिंदी एक्सेंट बहुत लाइक नॉर्मल है। दैट्स व्हाट दे कॉल, मतलब जो लोग बोलते हैं, क्योंकि जो हिंदी हार्टलैंड है, उन्हें कुछ भी उनसे अलग लगता है, दैट दे कॉल एबनॉर्मल। तो आपका हिंदी एक्सेंट बहुत ही अच्छा है। नहीं, ये मेरा एकदम कॉन्शियस एफर्ट रहता है, क्योंकि मैं हिंदी में बात करूं, और इसके पीछे एक बहुत जरूरी कारण है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे गलत फहमियां हैं और समझ बहुत है, स्टैंडिंग्स बहुत है। तो मेरा एक कलाकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मैं हिंदुस्तान को और इंडियंस जितने भी हैं सबको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट भी 8 स्टेट्स है, 45 मिलियन पॉपुलेशन है 8 स्टेट। ये 45 मेरे जैसे दिखने वाले लोग भी, जितने आप हिंदुस्तानी हो हम भी उतने ही हिंदुस्तानी है। तो ये बताना और इस बात पे गौर करना मेरा बारी भी है, एक कलाकार होने के नाते। तो मैं इसे, और दूसरी बात, मेरा खुद का हिंदी का भी प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि मैं हिंदी तो नेचुरली मैं मदर
तो मैं हिंदी में जानबूझ के बात करता हूँ। मैंने बताया ना आपको, मैं एकलव्य बहुत, यस, मैं सीखने में बहुत विश्वास करता हूँ। कोई भी चीज हो सीखना चाहिए। यस। सबसे बड़ी बात है ये बताना पड़ता है कि हाँ, अब जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, अब जरूरत नहीं होना चाहिए। आई मीन आइडियलिस्ट नहीं में, होना चाहिए, आइडियल आइडियली नहीं, सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हकीकत तो ऐसा ही है। तो यस, यस, उसके साथ जुड़ना भी बताना पड़ता है। और इसमें मैंने वो कीर्ति के इंटरव्यू में भी बताया था, ये इसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी यस, है। ये डीपली रूटेड इशू है, एकदम सिस्टम है। और इसको हम लोग सिस्टमैटिकली ही डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यस, कहीं पे भी मिडिल इंडिया में, हिंदी बेल्ट में कहीं पे भी जाता हूँ, मैं कोशिश, मेरा ये रहता है कि मैं अगर हरियाणा आऊं तो मुझे आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपका खान पान मुझे मुझे सीखना चाहिए। और मैं खुद के बारे में भी, हम कौन है आपको सिखाएंगे। यस, तो मुझ में वो डर भी, मुझ में वो इनसिक्योरिटी नहीं है, फियर नहीं है। तो मैं बहुत ही राइट, खुला खुला किस्म का इंसान। मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट भी, बिकॉज अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था, लड़कियों के लेके दिल्ली में कुछ झमेला हुआ था, लव। तो ये बहुत ही जो नजरिया है ना, और ये जो है बहुत ही गलत है। यस, तो इसको एजुकेट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ तो झगड़ा नहीं कर सकते। मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ और आपसे सीख सकता हूँ। यस। ट्रैवलिंग का सोल पर्पज ही ये होना चाहिए दैट यू लर्न डिफरेंट कल्चर। आप जहां जा रहे हो वहां सीखो, you give them something, you take them something. Like if you have traveled the world and come back to same room and still you see the things same way, then there is no use, right? इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, इवॉल्व होना। Yes, यू नो क्योंकि देखिए, अभी यहाँ पे दार्जिलिंग सिक्किम में अब पूरा नेपाली कल्चर है, नेपाली भाषा बोलते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नेपाली लैंग्वेज इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यू नो yes, yeah, लेकिन लेकिन इसके बारे में एजुकेशन हुआ नहीं है, सामाजिक तौर पे। तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे के बारे में जानो, हम लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को समझे हम लोग, ताकि ये जो जो सस्पिशंस होते हैं, जो अस एंड देम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये खत्म, yes, जितनी जल्दी खत्म उतनी अच्छी है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं भगवान के, व्रत के, मंदिर के, पूजा के, लेकिन हमारे व्यवहार जो है वो इंसानियत तो है ही नहीं उसमें। तो yes. जब तक आप इंसान नहीं बनोगे, आप हिंदू भी नहीं बनोगे, मुस्लिम भी नहीं बनोगे, बुद्धिस्ट भी नहीं बनोगे। पहले इंसान बनो। यू नो Insan, humanity first thing हाँ, for any religion. या सो दैट्स मेरा मेरा खुद का सिद्धांत भी वही है। मैं इसीलिए कलाकार हूँ, क्योंकि मुझे समाज में, मुझे दुनिया में बहुत कुछ गलत दिखाई देते हैं, गलत लगता है। तो उसके बारे में बात करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये मेरा अपना एक कर्म जैसा समझता हूँ मैं, मेरा कर्म योग जिंदगी। सो दैट्स व्हाई। Right. लेकिन मैं एंटरटेनर नहीं हूँ। मैं मैं अपना अपना जो कहते हैं ना, क्या, एंटरटेन करने के लिए और लाइक्स बढ़ाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए मैं नहीं करूंगा। मतलब जो जो कुछ भी मुझे मिले वो नहीं कर, मैंने किया भी नहीं है। मुझे मिला था ऑफर ऐसे मिले थे मुझे जो बहुत अच्छे थे, पैसा भी अच्छा था, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। Yes. क्योंकि मेरा सिद्धांत बहुत, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो या So सिद्धांत from like पूछिए 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 आप राजेश जी, क्या? आप काफी आध्यात्मिक भी है। मैंने आपका देखा है, आप दलाई लामा को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। हाँ, सो उसके बारे नहीं, में बताइए।
Stuck. सॉरी, आपका सवाल मैं समझा नहीं। Basically, you follow Buddhism and the Dalai Lama, so I just want to know like more of it. दलाई लामा जी अब हमारे हमारे स्पिरिचुअल गुरु है, यू नो। Yes. और बुद्धिज्म मेरे लिए धर्म नहीं है। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा नास्तिक टाइप का इंसान हूँ, यू नो। लेकिन Yeah. हिंदुइज्म और बुद्धिज्म मेरे लिए धर्म, मेरे लिए विज्ञान है, साइंस है। Okay. सो बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म मेरे विज्ञान है, विशेष ज्ञान बोलते हैं ना विज्ञान को, तो वो है। और बुद्धिज्म मेरे लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साइंस है, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ इमोशंस, यू नो। तो मैं उसमें ये सब सीखने का कोशिश करता हूँ, और बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से मैं ये सीख, लेकिन मैं वो रिचुअलिस्टिक एकदम रिलीजियस, मैं ये खाऊंगा वो नहीं खाना है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, इस जात से कर सकता हूँ, यू नो। मुझे अजीब लगता है, हम लोग दूध फेंकते हैं, बहुत सारे दूध फेंकते हैं, गाय 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 का मूत्र, क्या क्या कहूँ। Right now I mean, ऐसा बोलना भी अलाउड नहीं है कंट्री में. It can be really controversial. It is that much like religious extremism. लेकिन इसीलिए राजेश, इसीलिए इस देश के नौजवान लोगों को बोलना चाहिए। Yes, बोलना, absolutely. यू नो। आप खड़े हो मरो, लेकिन घुटने टेक के मत जियो आप। Absolutely. तो मैं ऐसा हूं, मैं खड़े होके जीऊंगा और खड़े होके मरूंगा, लेकिन अपने घुटने टेक के नहीं जीना है मुझे। तो अगर मुझे कुछ चीज गलत लगे, मेरे अपनी माँ बाप का, यू नो, मम्मी का भी अगर मुझे कोई बात गलत लगे, तो मैं उनको प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन मैं इनकार कर दूंगा, मैं सहमत नहीं हूँ। Absolutely. सो Nastic means atheist, non-believer. Somebody is saying, पता नहीं, yes, yes. बस टाइम पास कर रहे हैं भाई के पास, ऐसा होता है, तो ट्रोल करते हैं, टाइम पास करते हैं, बेचारा उन लोग की जिंदगी में कुछ खामियां हैं, इसीलिए करते हैं ये सब। नहीं, लैंग्वेज का इशू भी हो सकता है, हिंदी ना हो, सो लेट्स नॉट एज्यूम एट लीस्ट. सो अभी जो ब्रोकन विंग्स आ रही है उसके बारे में क्या है ये? आई नो दैट इट्स अ लव स्टोरी बेस्ड इन दार्जिलिंग. इट इज ये सत्य कथा नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी। बहुत सारे गलत, ये ट्रू स्टोरी है, सत्य कथा नहीं है, सत्य घटनाओं पे आधारित है। ओके. सो इट्स इंस्पायर्ड बाय true incidents. It's not based on a true story. Yes. So okay. मैं 1990 के बीच में जो मैंने देखा था, मैंने उस समय सुना, मैंने देखा, जो मैंने भोगा, जो मैंने महसूस किया, वही सब उन्हीं, क्या कहते हैं, उसी समय का जो पृष्ठभूमि पे जो मेड अ फिक्शनल लव स्टोरी. और ये जरूरी भी था कि हमारे पहाड़, यहाँ के दार्जिलिंग के, यहाँ की कहानी बताना, यहाँ का दर्द, यहाँ की दुविधा जो है, वो लोगों तक एक कला के माध्यम से पहुंचाना बहुत जरूरी लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे फिल्म शूट तो 60-70 से होता है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म, यू नो, राजेश खन्ना से, शाहरुख खान से लेके बर्फी तक, यू नो, रणबीर कपूर, सब यहाँ पे शूट।
अभी तक सिर्फ दार्जिलिंग को सिर्फ चाय दिखाते हैं, कंचनजंगा Yes, दिखाते हैं, yes. फिर लेकिन दार्जिलिंग कभी दिखाया नहीं किसी। तो मैंने कोशिश की दार्जिलिंग को दिखाऊं, जो दार्जिलिंग के अंदर का जो जो घाव है, जो 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 बीमारी है, उसको दिखाने का कोशिश किया। Okay. हाँ। Actually, that is true. नॉर्थ ईस्ट इज सो ब्यूटीफुल, फिर भी यहाँ पे शूटिंग बहुत कम होती है मेन स्ट्रीम मूवीज की. हाँ, अब ये तो इसके पीछे बहुत कारण है, बहुत रीजंस है, सोशो पॉलिटिकल रीजंस है, कल्चरल, एंड देन नॉवेल्टी फैक्टर्स बहुत है। आप आजकल बॉलीवुड का बजट, मेन स्ट्रीम का तो बजट बड़ा होता है, तो वो अगर यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते तो भला यूं क्यों यहाँ पे। और यहाँ की सरकारें जो है, ये जो राज्य जो है, और राज्य सरकार का भी एक एक जिम्मेवारी बनता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे इनवाइट करे, इंसेंटिव्स दें, यस. यू नो। सो या Somebody is saying your movie Broken Wing sound controversial. वो वही बंदा है जो पहले इम्पोर्टेंट लिखा था, वही बंदा Yes. है। मुझे पता है, मैं असम्पशन नहीं कर रहा हूँ राजेश, Okay. मैं असम्पशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ट्रोल कर रहे हैं। Yeah. And any movie with Ranbir Kapoor, somebody asked, by the way, any project that you are hearing, uh, any movie in Bollywood, for the plan of acting in Bollywood. हाँ, मतलब एक दो पता नहीं, अब देखते हैं। अभी तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कर रहा हूँ मैं। Okay. काम हो रहा है मेरा इस साथ, और फिर मेरा ये जो अभी फिल्म बन रहा है, उसके अलावा मेरा एक दूसरा फिल्म, एक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों का एक मिक्स फिल्म बना रहा हूँ मैं। वो भी पिछले अगले 3 साल के अंदर शायद बन जाना चाहिए। Okay. और इंडिया के बहुत बहुत बड़े एक्टर है, और बाहर के भी हैं। सो वो थोड़ा बड़ा फिल्म है, सो उसका स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ रेडी है, लेकिन बस प्रोड्यूसर का वही है काम। सो अगर प्रोड्यूस करने वाला सही मिल गया और कोई ओटीटी के को प्रोडक्शन कर पाए तो वो फिल्म बने। लिख चुका हूँ लेकिन मैंने। Okay. I mean, casting and everything is done. Casting. नहीं, कास्टिंग, लीड का कास्टिंग हो गया है, बात कर चुके हम। Okay. Okay. हाँ, लेकिन अब आखिर में जाके फिर वही होता है ना, बजट पे ही होता है सब कुछ। तो जिस हिसाब से मैं बनाना चाहता हूँ उसका बजट बहुत बड़ा है, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ऑफिशियल अप्रोच कर रहे हैं, स्टूडियोज के साथ बात हो रहा है, ओटीटीज के साथ बात हो रहा है। तो मैं पता नहीं, मुझे यकीन है कि फिल्म तो अब कब बनेगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बनेगा। Maybe after release of Broken Wings, things will fall up into places. मे बी विल। Yeah. हाँ जी। Okay. So, I mean, you will be doing more of it, like acting in Bollywood. Other than that, you can do like as a musician or script writing. Uh, I mean, part of Bollywood in different ways. नहीं, मैं No? स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं, बिकॉज मेरा स्टोरी टेलिंग, मेरा स्टोरी राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन मेरा स्क्रीन प्ले राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो Okay. मैं चाहता, मैं अब अगले फिल्म में मैंने कहानी तो मैंने लिखा है, पहला ड्राफ्ट मैंने, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई अच्छा सा स्क्रीन प्ले राइटर, और वो उस कहानी को और बेहतर बनाए, लेकिन मैं स्क्रीन प्ले राइटर अच्छा नहीं हूँ, मुझे इतना पता है।
और बस मैं मोस्टली मेरा फोकस डायरेक्शन पे रहेगा और थोड़ा थोड़ा बहुत साइड पे एक्टिंग कर लूंगा मैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम में आने से you will get more viewer for your work, so there will be like more investment will be possible in your work, and नॉर्थ ईस्ट से कोई भी आएगा तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्दर उसको मोटिवेशन मिलेगा और इवन लाइक रिकग्निशन मिलेगा। हम्म। तो इवन आपको नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, अगर सेंट्रल मेन स्ट्रीम में जितना रिकग्निशन मिलेगा उससे और कनेक्ट होगा, वहां के वर्क को और रिकग्निशन मिलेगा। हम्म। ये तो बात सही है, लेकिन अब मिलना भी तो चाहिए ना। अब मैं अपने अपने सिद्धांत का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने वाला। तो राइट। मैं मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा मेन स्ट्रीम ऑफर्स भी आएंगे। मैं बस इंडी टाइप का फिल्म मेकर हूँ और इसी में खुश हूँ मैं, लेकिन हाँ, आगे जा कोई अच्छा अच्छा प्रोड्यूसर्स मिल गए जो जो मेरे विजन पे भरोसा करे तो लेकिन फिल्म बनाता रहूंगा मैं। और ये जरूरी नहीं कि बड़ा बजट वाला फिल्म अच्छा हो। अब आपने देखा या हो थग्स ऑफ हिंदुस्तान, देखा है आपने? और फिर बधाई हो को देखो, थग्स ऑफ हिंदुस्तान कितना 150 करोड़ का था, है ना? और बधाई हो वही 4 5 6 करोड़ का होगा शायद, पता नहीं। यस यस, अनुराग कश्यप, हाउ ही स्टार्टेड, जो काफी छोटे एग्जैक्टली, बजट की मूवी बनी। यस या ब्लैक फ्राइडे, अब उसका वन ऑफ हिज बेस्ट यस फिल्म्स। सो सो बस लाइक आई सेड, ये टेंशन करना बहुत जरूरी है। आप इस लाइन पे यू नो आप फिल्म मेकर क्यों बने? somebody is saying आज के टाइम में मेन स्ट्रीम का मतलब बहुत परिवर्तित हो गया है। हम्म। प्रोबेबली अभी जो कंटेंट बेस्ड मूवीज है वो ज्यादा बनने लगे हैं रादर देन लाइक 3 4 years बैक। हाँ, नहीं ऐसा है ना, मुझे मेन स्ट्रीम से कोई कोई पर्सनली मुझे मेन स्ट्रीम से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब देखो आप, पैरासाइट जो बना कोरिया से, वो बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म है, और जो यस हॉलीवुड से बना बहुत मेन स्ट्रीम है। लेकिन अगर आप अच्छा मेन बनाओगे तो चले, मैं भी यस देखूंगा। लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम के नाम पे अभी जो राधे टाइप का फिल्म, तो फिर पर बॉलीवुड में ये परसेप्शन है, मेन स्ट्रीम मासी मूवी बनानी है तो यू हैव टू टेक आउट कंटेंट फ्रॉम इट, लाइक इवन आई लाइक इम्तियाज अली, बट जब हैरी मेट सेजल के बारे में ही वाज सेइंग मुझे शाहरुख खान को लेके मूवी बनाना था तो मासी मूवी बनाना था, तो मैंने उसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं किया। ही मेड तमाशा, तमाशा हाईवे, एंड देन ही मेड हैरी मेट सेजल, बिकॉज शाहरुख खान इज अ बिग स्टार, वो मेन स्ट्रीम मूवी बनाना है, एक मासी मूवी बनाना है, तो इट इज assumed that mass doesn't have much, like they don't want to process their brain while watching a movie. हाँ, अब पता नहीं ये अलग अलग देशों का अलग अलग वो, इससे क्या होता है, ये अपना अपना अपने देश का एक कल्चर भी झलक, लेकिन अभी अभी एक की वजह से, और अभी एक्सेस कैमरास का बहुत, पहले तो फिल्म कैमरा बहुत, अभी भी जो हॉलीवुड बॉलीवुड यूज करते तो बहुत महंगे कैमरास होते हैं, लेकिन आजकल छोटी मोटी कैमरा से भी फिल्म बन जाते हैं। तो अभी थोड़ा डेमोक्रेटाइज तो हो गया है, Right. और वीडियोस भी देख रहा है, जैसे अभी ओटीटी में फैमिली मैन, मनोज बाजपेयी सबसे बड़ा हिट हो गया, Absolutely. Yes. लेकिन सो यही है, बस मुझे पता नहीं, मुझे कोई नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना अपना तजुर्बा बता, जब मैं ये फिल्म बना रहा था ब्रोकन विंग्स, तो मेरा रीजनल फिल्म के हिसाब से मेरा बजट अच्छा ही था, ठीक ठाक ही था। और अगर मैं चाहता तो कोई एक्टर जो है
मेन स्ट्रीम एक्टर को लेके एक हीरो का रोल लेके, या तो इसमें कोई ऐसा चेहरा डाल सकता था जिसका थोड़ा पब्लिक में वो थोड़ा फॉलोअर्स हो, लेकिन Yes. मैं उमंग कुमार की तरह, मैं वो मैरी कॉम की तरह नहीं करना चाह रहा था, मैरी Actually, कॉम yes. जब बनाया, मुझे प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैरी कॉम को एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की को वो किरदार मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। राइट। Absolutely. अब Yes. मेरा दार्जिलिंग का कहानी है और दार्जिलिंग का लड़के का किरदार है, तो मैं वो दार्जिलिंग का लड़के का किरदार कहीं और कोई फेमस लड़का बॉलीवुड को क्यों दूं? क्योंकि Yes. वो तो मेरा आर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेरा कला Yes. कॉम्प्रोमाइज हो। हाँ, शायद मैंने Yes. बिजनेस बहुत गलत लिया हो, शायद मेरा पैसा वसूल भी ना हो, शायद फिल्म फ्लॉप भी हो जाए, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जो किया वो मेरे लिए, मैंने जो किया वो ठीक ही किया। एक एक अनजान लड़के को मैंने लिया, 300 लड़कों का ऑडिशन हुआ था, और एक अनजान लड़का जो जो कोई जानता भी नहीं उसको उसको रूम करके उसको लीड एक्टर बनाया, क्योंकि मुझे फिल्म बनाना था, मुझे धंधा नहीं करना था। Yes. सो सो उसी हिसाब से सोचता हूं मैं, लेकिन मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि वही होता है ना। अभी अब शादिस्तान भी, राज सिंह बहुत ही स्मार्ट काम किया उसने। शादिस्तान में अब बहुत सारे थे, लेकिन कीर्ति केके का थोड़ा, मैंने का थोड़ा सा वो स्पेशल था, अब मैंने ऐसा सोचा है, अपने अपने सिद्धांत के। एंड यू नो व्हाट, ये Yes. दुनिया बहुत बड़ा है राजेश, दुनिया बहुत बड़ा Yes. है, Yes. हर तरीके का अपना अपना जगह हो जाता है। मैं जो बहुत सारे लोग जो करते हैं, मैं नहीं, वो नहीं कर पाता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ, और मैं जो करता हूँ मुझे सही लगता है, भले मैं अकेला पड़ जाऊं, दुनिया मुझे ना सके, लेकिन मुझे ठीक लगता है सिद्धांत तौर पे, तो मैं वही करता हूँ, क्योंकि मैं अपना सुख चैन छोड़ के, इतना अच्छा काम छोड़ के, मैं फिल्म मेकर नहीं, यू नो मुझे मुझे कुछ कहना है, इसना है मैं, यू नो सो Yes, most important thing is मेरी फेवरेट बुक है टू किल अ मॉकिंग बर्ड. आई लव द कैरेक्टर एटिकस फिंच. ही सेज कि बाहर लोगों से से पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा. If you can't meet that person, so there's no point. Like, the good thing is your thought process is not governed by democracy. That is yours. उसके लिए मेजोरिटी नहीं चाहिए. नहीं। और मैं कभी, मैं बचपन से मेरा मेरा नेचर ऐसा नहीं रहा कि मैं, जो पॉपुलर है, मैं कभी बचपन से वैसा नहीं था। मैं, नो I it has to make sense to me, you know if it makes sense to me, then I will agree. If it doesn't make sense to me, if I'm all by myself and everybody is against me, I will still. Okay. Now let's take few questions if people are asking. If somebody has to ask anything, please write down in comments. One of the famous comment is sing few lines of your favorite song or any song. नहीं नहीं, मैं तो अगर मैं गाता तो मैं खुद ही प्लेबैक सिंगिंग कर लेता, मैं खुद गा लेता रिको को गाने के लिए, मैं नहीं। No, but I can't believe कि कोई भी म्यूजिशियन है वो गा नहीं सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता. Anybody who plays any instrument has knowledge of music can sing. नो, ऐसे तो कोई भी गा सकता है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं Don't मैं मैं challenge me. मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको एकदम इज्जत के साथ, मेरा कोई उसके पीछे और कोई कोई कारण नहीं, मैं गाने का मूड भी नहीं है, और मैं Okay. अभी गाता भी, आई एम सो सॉरी। No issues, no issues. So let me go through the comments if somebody हाँ, few लेकिन line. आप लोग मेरे मेरे काम के बारे में और फिल्म और के बारे में आपको कोई सवाल है, तो आपका सवाल है तो जरूर पूछ सकते।
I'll be sharing your work in my stories. Actually, I've seen mostly like most of your work in recent times. मैंने शादिस्तान देखा, उसके बाद मैंने आपकी शॉर्ट मूवीज देखी, मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा. So it this is also the most popular comment, your hairstyle. Thank you, thank you, thank you. So लोगों को अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में अक्सर लोगों को बाहर क्या है उसी पे ध्यान जाते हैं लोगों का. बाहर, मेरे भीतर क्या है उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछिए. मेरे अंदर क्या है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो समय व्यर्थ नहीं जाएगा. तो ये बाहर बाल, चश्मा, जैकेट वैकेट कौन, यू नो, लेकिन हमारे हम दुनिया ही ऐसा है, सब बाहर से. मैं हमेशा किसी का इंटरव्यू देखता हूँ तो मैं उसके चेहरे पे नहीं जाता हूँ वो क्या पहना है, लेकिन उसको क्या बोल रहा है. अगर कोई इंटरेस्टिंग बात मैं उस पर ध्यान देता हूँ. तो मुझे सो दिस सो फिल्म मेकिंग के बारे में कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करते, लाइक you will be telling stories, but it's a process, it has many things, and like you yourself are doing many things in that. So उसमें से क्या चीज है जो like आपको बहुत फैसिनेट करती है? film making to basically, I mean, I love all kinds of art. But cinema is one of those that इसमें सब कला का मिश्रण, right? All Yes. art. इसमें कविताएं हैं, इसमें राइटिंग है, इसमें डिजाइन है, फैशन है, कॉस्ट्यूम है, फोटोग्राफी है, सब कुछ है इसमें, so that is one thing that fascinates me. And I think the other thing is how cinema, or any art for that matter, any art, how it is born in someone's mind, Yes. इंसान की सोच में वो आ जाते हैं, और फिर उसका मैनिफेस्टेशन जो होता है, उसका जन्म जो होता है, वो मुझे बहुत ही खूबसूरत और मैजिक है मुझे, क्योंकि because this is spiritual for me, art, अब जैसे म्यूजिक हुआ या पेंटिंग हुआ, कोई गीता हो गया, it's interesting, it's coming from nowhere, and and it becomes something out of nothing, Yes. so I think human mind का और human imagination का जो potential है बहुत खूबसूरत है, yeah. Same thing. Whenever I watch a movie, like, or for that matter, any art, painting, or even book, when you read or you see something like really incredible, you think like, कैसे सोचा होगा ये, क्या माइंड में क्या होगा, ये कितना ब्यूटीफुल थॉट कैसे आया, हाउ डिड इट डेवलप इवॉल्व. Yeah. और कोई सवाल? So if there are no many questions, let's see, like we should wait for few questions maybe. शायद लोगों को बोर भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं सीरियस बातें ही करता रहता हूँ, तो लोग अगर No. मैं इधर थोड़ा Let's, where do you see yourself in 5 years? Oh man, these questions. Where do I see my 5 years? I don't know where I see my where I would like to see myself in 5 years. Making films, writing poetry. I'm also writing a book. Hopefully, 5-6 साल 7 के मेरा खत्म, और मैं कोई फिल्म सेट में हूँ, now भी मैं बस यही
तो जब तक है जान, दिस आई वांट टू। So, the book, it is like a collection of poems or a novel kind of book, or नो नो, non? मेरा पोइट्री का भी मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा कॉफी टेबल बुक पब्लिश करूँ, वो तो मैं जल्दी कर दूंगा। लेकिन जो किताब लिख रहा हूँ वो नॉवल नहीं है, वो इज जस्ट sort of अपनी जिंदगी से जो कुछ सीखा है, you know, whatever I've learned from life and from mistakes, you Okay. know, और मुझे जो A सीखने memo. को, Yeah. हाँ, जो मुझे सीखने को मिला है, काइंड ऑफ लाइक सेल्फ हेल्प टाइप्स, बिकॉज मुझे पता है Okay. कि मैं इससे गुजरने वाला, बहुत सारे लोग हैं जो जो यू नो डार्कनेस से गुजर गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस अंधकार से निकल पाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं निकल पाया, यू नो। लेकिन मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं मेरी जिंदगी से किसी और की जिंदगी को फायदा हो। तो मैं बस, Interesting. कैन यू शेयर एनी पोएम यू? अब मैं सब इनकार करूंगा तो बहुत ही खड़ूस इंसान का गाना भी इनका। चलिए मैं एक स्मॉल, I'll do a small one. कौन सा लिखूं? मैंने ये हिंदी और उर्दू में मैंने पिछले 2 साल में लिखना शुरू किया। मैं हमेशा इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन आई वांटेड टू राइट इट इन उर्दू एंड नेपाली। सो इन द लास्ट 2 years 3 years बहुत देर से सीखा। ओके, रेडी? Yes. जरा मुझे उस कब्र कोख में डालकर छोड़ दो, जरा मुझे उस कब्र कोख में डालकर छोड़ दो, यूं कि एहसास हो जमीन पे होने की ज़हन-ए-नस्बी। जरा मुझे उस कब्र की कोख में डालकर छोड़ दो, यूं कि एहसास हो जमीन पे होने की ज़हन-ए-नस्बी। वो जो जरा सा जमीन के ऊपर खड़ा है और मैं जो जरा सा जमीन के नीचे पड़ा हूं, शायद यही जरा सा फर्क है जो हमें पूरी जिंदगी समझ। Wow. उर्दू, आप कब से उर्दू में लिख रहे हो? आपकी उर्दू काफी अच्छी है। उर्दू में लिख नहीं रहा हूँ, रोमन में ही लिखता हूँ। उर्दू लिखना नहीं आता है मुझे, लेकिन सीख रहा हूँ, लैंग्वेज सीख रहा हूँ मैं। ओके। जो हाँ, तलफ़ुज़, जो यस। उसका एक्सेंट्स, ये सब सीख रहा हूँ मैं। I'll tell you guys another one. This is a very simple one. नजर आता हूं मैं भटकते सही, नजर आता हूं मैं भटकते ही सही, पर मंजिल मिलने का यकीन है, पर यकीन है मंजिल मिलने का। नजर आता हूं मैं भटकते ही सही, पर यकीन है मंजिल मिलने। गुमराह वो है जो घर से निकले। वाह। चलिए, हो गया। और कुछ? Your upcoming movie, lots of good luck to your future writing. Hope audience will love the movies. Lots of wishes are coming in. Hearts are coming in. I like Urdu. Inshallah. Tashir, I get to know more. Your thoughts and perception are amazing. If I'm not wrong, जो सॉन्ग्स है ब्रोकन विंग्स के आपने ही लिखे हैं? हाँ जी, उन सॉन्ग्स का लिरिक्स और म्यूजिक भी मैंने लिखा, और लिरिक्स भी मैंने, धुन भी मैंने, लेकिन हमारा छोटा भाई और हाँ। ओके। Anybody else wants to ask a question? So I think we're about to be done, right? So एक दो Yes. questions और ले लेते हैं,
Yes. So last few questions. Anybody want to ask anything? Let's see. Let me go through it. Nobody has questions. I think you have replied all of them. Huh? So Khana? Yeah. No, just plain soup. No salt at all. No salt. Sorry. okay, so let's wrap it up. Wish you a lot of luck for Broken Wings and all the future projects. थैंक यू राजेश अच्छा लगा आपसे मिलके और मेरी भी आपको एक कामनाएं आपकी लाइन ऑफ व्यू मैगजीन और तरह Thank और you. आप व्हाई इज डिसेंट मैं ये सवाल समझाने आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन Maybe it's my hairstyle. Decent. आपके बात मेरे बात मेरा तो डिसेंट नहीं है मैं इंसान ही बहुत इनडिसेंट इंसान हूँ मुझे नहीं है डिसेंसी के पीछे ज्यादातर हिपोक्रेसी छिपा हुआ आता है So let's change that. Okay. So thank Okay. you. Okay. Bye bye. Good luck for everything and bye bye. Let's wrap. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.